Hello all, today we will see what is shell and we will perform some basic commands and try to use shell. Okay, so what is shell? Shell is a basic program that takes a command from keyboard and send it to the operating system and to perform some actions. Okay, if you ever in this Linux you can find the terminal or as well as console like this ter. I have this terminal, so I don't have console. Okay, so this is Ubuntu, so in here only terminal is present, so I have opened this. And the next is there are just programs. Okay, so we will use the shell program bash. Okay, so by default most of the operating system, I can say almost of the Linux operating system has by default shell called bash. Okay, so how do we know that we are using bash shell? So we can find it with echo $0. So it will give us the default shell of this session. So it is says bash shell. Okay, so we are using bash shell. There are other shells available in Linux, that is K shell, Z shell, okay, or TS shell, but we won't get into any of this. Okay, so let's see the syntax of our terminal. We'll sing this username @ and this is the host name of my machine. If I say host name, so it will print this, so it is called host name. If I enter user, so so it will print username which I have already logged in. Okay, so now what is this dollar means? Dollar means we are using bash shell. Okay, so it represents the user directory. And the end of prompt, different shell have different prompts. In our case, dollar is a normal user using bash shell. Okay, bourne or con shell, we are using bourne again shell, so it is bash. You don't add this prompt symbol when you type the command, you just type there. Okay, so like I do not enter this, so like this I only ls type command and enter, so it will search and give us output. Okay, so let's start with echo command. So we have seen this echo $0, so it will print bash. Or if I want to print hello world, so I inverted comma, I said hello, so it will print hello. Okay, so echo is used to print the word. Print simple text, or you can say anything you want to. If I want here hello Amit, so it will print this. Okay, so let's see next commands. We will see one by one these commands. So first one is pwd. What is pwd means? Pwd means present working directory. So इससे हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं एंड हमारा वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है. तो दिस इज़ माय होम डायरेक्टरी कॉल्ड यूज़र आस्था. ओके, सो दिस इज़ माय होम डायरेक्टरी ऑफ यूज़र आस्था. तो मैं अभी कहाँ पे प्रेजेंट हूँ? इसके होम डायरेक्टरी में, जो कि मेरा पाथ ये है. ओके, pwd से क्या पता कर सकते हैं? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो नेक्स्ट इज cd. सो cd का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी. तो आई नीड टू चेंज डायरेक्टरी इनटू mnt, सो आई विल से /mnt. So it will change my directory, and when I run this command, so it will showing me this, that you are in /mnt folder. Okay. Now the next is ls command. If I do ls and enter, so in mnt there is nothing present. Okay, so ls क्या करता है कि लिस्टिंग करता है फाइल के अंदर का. ओके, सो नेक्स्ट वन इज टच. टच क्या करता है? टच कमांड का मतलब है कि एक फाइल क्रिएट करो, टच फाइल .txt. सो आई एम creating a file with the command touch and file. So
I have created the file. If I do now ls, it will show me the list of content of this directory, which is mnt. So if I enter, so there is a file present called file.txt, which we created in touch command. Okay, so next command is file. ओके, सो फाइल कमांड क्या करता है कि हमको टाइप बताता है कि फाइल का टाइप क्या है. इफ़ दैट फाइल इज कॉल्ड बाइनरी फाइल और जिप फाइल और एनीथिंग, सो इट विल टेल अस द टाइप ऑफ द that file. Okay, so if I type file.txt, so it will say empty file. Okay, if I check this file /etc/parswd, so it will say ASCII text file. So in this file all the ASCII numbers are present, ASCII. Okay, so you can find file type with the help of file command. Okay, so next one is cat. So now cat, what is cat से क्या कर सकते हैं? cat से हम फाइल को रीड कर सकते हैं. जैसे कि मैं file.txt कर रहा हूँ, तो file.txt में कुछ भी नहीं है. अगर मैं file.txt में एको करता हूँ हेलो अमित, ओके, सो इसको मैं रीराइट करता हूँ file.txt के अंदर, तो ये file.txt के अंदर चला गया. अब मैं कैट फाइल को पढ़ना चाहता हूँ, तो कैसे पढ़ूँगा? कैट कमांड से file.txt को. सो इन दैट फाइल वी हेलो अमित इज प्रेजेंट. ओके, तो हम ऐसे कैट कमांड से फाइल को पढ़ सकते हैं. लेस से भी हम पढ़ सकते हैं फाइल को. अगर हमको लेस से पढ़ना है तो लेस कमांड यूज़ करना पड़ता है, लेस फाइल. तो it will show the end of the file. If file is longer than 1 page or 2 page, so you can press down key and go to the next line. Okay, so I'll show you the example, which is /etc/parswd, or I can say there is a file called fh-logs. Okay, so sorry, less. So I can read it one by one, line by line. Okay, so line by line पढ़ने के लिए less कमांड यूज़ होता है. एंड more से क्या होता है? more से हम पेज वाइज पढ़ सकते हैं. So you have to press space, so it will show like this. मोर से क्या होता है कि उसको पेज वाइज पढ़ सकते हैं हम. एंड नेक्स्ट कमांड इज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री से हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा कमांड्स चलाया है. ओके, सीपी से क्या करते हैं कि हम फाइल को कॉपी करते हैं. ओके, फाइल कॉपी कर सकते हैं हम सीपी से, एंड सीपी से फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं दूसरी. इसमें अगर हमको फाइल कॉपी करना है कहीं और इस जगह पे जहाँ पे फाइल का नाम कुछ और रहने वाला है, तो हम सीपी से कर सकते हैं उसको. जैसे कि अभी file1.txt है यहाँ पे, तो मुझे कुछ और नाम से चेंज करना है इसको, तो मैं लिख दूँगा file2.txt. तो वो यही के यही कॉपी हो जाएगा एंड 2 फाइल शो करेगा मुझे like this. And if I cat this both files and okay 2.txt, so it will be same. okay, बट आप टाइमिंग चेक कर सकते हो कि हाँ ये पुराना फाइल है एंड दिस वन इज़ न्यू जो अभी क्रिएट हुआ है. ओके, तो सीपी कमांड से कॉपी कर सकते हो. एज सिमिलर एज एमवी क्या करता है कि फाइल को मूव करता है. अगर मैं फाइल 2.txt को मूव करना चाहता हूँ फाइल 1.txt में, तो मेरा फाइल मूव हो जाएगा एंड कंटेंट वही का वही रहेगा. ls-lh, यू कैन से फाइल 2 जो है वो कन्वर्ट हो गया फाइल 1 में. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ कि फाइल 1 में क्या है. सेम चीज़ है जो file.txt में है. करेक्ट. तो नेक्स्ट कमांड है mkdir. mkdir क्या करता है कि
डायरेक्टरी क्रिएट करता है। जैसे कि मैं डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहता हूँ, MKDIR अमित नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं ls-l करता हूँ तो मुझे अमित नाम का एक डायरेक्टरी दिखता है। मुझे कैसे पता चला कि ये डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे D शो करता है वो फर्स्ट इसमें, ओके, परमिशंस में। सो इट विल बी कवर्ड इन परमिशन, फाइल परमिशंस। तो फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि ये फ्रंट में अगर D शो कर रहा है तो वो फाइल है, डायरेक्टरी है, एंड कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो वो फाइल है, ओके। सो नेक्स्ट कमांड इज rm। इफ मुझे रिमूव करना है दिस file1.txt, तो मैं rm कमांड यूज़ करूँगा, file1.txt। सो इट विल बी रिमूव्ड, ओके। सो यहाँ से file1.txt चला गया, डिलीट हो गया, ओके। ऐसे ही अगर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करना है तो rmdir, okay. If directory is empty, it will be deleted. If not empty, so you have to use this command rm-r, okay. Recursively you have to delete this directory with the content, okay. तो next command is find क्या करता है कि हमको अगर कोई फाइल नहीं पता कि वो फाइल कहाँ पे है एंड उसका लोकेशन क्या है, तो हम उसका लोकेशन पता कर सकते हैं फाइंड कमांड से। फाइंड हाइफन नेम मीन्स ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गया, ओके। फाइंड कहाँ पे फाइंड करना है, स्लैश के अंदर। कैसे सर्च करना है, नाम से सर्च करना है, ओके। एंड क्या नाम से सर्च करना है, तो PASSWD, पास WD फाइल नेम है उसका। तो ये मुझे परमिशन डिनाइड बोला उसने, ये सारी चीज़ें दिखाया उसने क्योंकि वो स्लैश में सर्च कर रहा है एंड मैं अभी रेगुलर यूज़र से लॉगिन हूँ तो नहीं शो करेगा, ओके। इफ़ आई वांट टू फाइंड फाइल .txt, ओके, कहाँ पे, /mnt में। इफ वेट, फर्स्ट वी विल cd बैक टू होम डायरेक्टरी, नाउ वी कैन फाइंड /mnt के अंदर, ओके। तो f नेम से फाइंड करना हमको, क्या नेम है उसका फाइल का, तो हमको सिर्फ नेम पता है कि उसका नाम है file.txt। सो इट विल बी शोइंग आवर file.txt, ओके। अगर ऐसा ही कुछ होम के अंदर, आस्क के अंदर कुछ सर्च करना है मुझे file.txt, तो वो नहीं दिखाएगा, ओके, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है वैसा। अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ os.log, ओके, सो वो मुझे शो कर रहा है सारी जगह से os.log की फाइल है, ओके। तो ये अच्छा एग्जांपल है कि आप फाइंड कर सकते हो कोई भी फाइल कहाँ पे है और उसका पाथ भी मिल जाएगा आपको। तो आप डायरेक्ट cd कर सकते हो ये वाले फाइल में, ये वाली डायरेक्टरी में, एंड यू कैन चेक इफ द फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। यस, देयर इज अ फाइल os.log, ओके। द नेक्स्ट वन इज हेल्प कमांड, ओके। तो हेल्प कमांड विल हेल्प यू with the options available in options and everything which you require to use in terminal, okay. Like you want to cd, so you can cd -help, so it will show you the cd का सारा हेल्प दिखाएगा यहाँ पे कि हम cd के साथ कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, उसका काम क्या रहता है, एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे तरीके से, एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उसके साथ कौन से ऑप्शंस अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मैन कमांड। सो मैन कमांड विल यूज़ लाइक दिस, मैन sudo
ओके। तो सूडो का क्या यूज़ है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके सिनोनिम्स कैसे कैसे हैं, हम उसमें ऑप्शंस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए। आप ये मैन पेजेस पढ़ सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी कमांड के लिए। ओके, तो अगर आपको कुछ नया कमांड है, टेलनेट कमांड है, तो उसके बारे में पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे बताया है अच्छे तरीके से कि उसका नेम से क्या है, नेम क्या है, उसका सिनॉप्सिस क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, एंड उसके ऑप्शंस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम उसके साथ। उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कमांड को यूज़ कैसे करना है, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं आपके इसमें। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़। ओके, तो व्हाट इज़ PWD। सो अब मुझे नहीं पता कि क्या है PWD, तो मुझे जानना है एक लाइन में आंसर, तो हम व्हाट इज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको एक लाइन में प्रिंट करके देता है कि उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ क्या कमांड है। ओके, तो PWD कमांड का मतलब है प्रिंट नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो वैसे ही अगर मुझे प्रिंट व्हाट इज़ फाइंड करता हूँ तो सर्च फॉर अ फाइल इन अ डायरेक्टरी। ओके, वैसे ही अगर मैं व्हाट इज़ सूडो करता हूँ तो वो बताता है कि एग्जीक्यूट अ कमांड एज अनदर यूज़र। तो यू कैन ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हेल्प, इनको हेल्प में गिना जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हेल्प, मैन और व्हाट इज़, इनसे आप उनका मैनुअल पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एलियस। ओके, सो व्हाट इज़ एलियस। एलियस क्या करता है कि हमको एलियस से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रेगुलर कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब मुझे CD करना है /MNT के अंदर, तो अब मुझे ये नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, एलियस CD एलियस MNT इक्वल्स टू CD। ओके, तो ये एलियस क्या करेगा कि ये जो कमांड है इसके अंदर स्टोर कर देगा, एंड मैं जब भी ये रन करूँगा तो वो क्या करेगा, चेंज डायरेक्टरी इनटू MNT। सो लेट्स सी, अगर मैं MNT करता हूँ तो मेरा डायरेक्टरी चेंज हो जाता है, करेक्ट। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल, यू कैन यूज़ आपके वर्क के अनुसार यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ओके, the last one is exit command. So exit will exit the terminal. Okay, thank you everyone. So we will see you in next session.